good evening, students, and I am going to teach an amazing topic today. And this is a topic which will actually open your mind towards chemistry. And इसके जैसा कोई chemistry हमने अब तक पढ़ा नहीं है. So we've learned the concept, the basis of this chapter, but yet it's an amazing chapter with amazing theory. Again, the name of the chapter, as you can see, is coordination compounds. Okay, so a new type of bond is going to be introduced to you that is called coordinate bonds. Okay, which is very similar to what you've learned in your 11th standard. So don't worry about it. There's nothing exceptionally new about it, but it is going to be an amazing topic. So without further ado, let's start. Coordination compounds hai kya? Okay, but when did we start and why did we start and where did this concept of coordination compounds begin? So it began when we were just reading and understanding salts. Okay, now salts अगर हम लोग मैं बात करूँ ना, salts को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं and we know there are different types of salts. Okay, so the first type of salt that we were studying was a normal salt. Now when I say normal, I don't mean just NaCl या फिर KCN, ऐसा नहीं. Normal salt मतलब क्या? एक cation, एक cation. Okay, whenever there is just one cation and one anion, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? A simple normal salt. Okay, normal का एक और word जो हम लोग use कर सकते हैं, that is simple. Okay, now the example to it, of course NaCl मैंने जैसे बोला, AgCN हो सकता है, CaBr2 भी हो सकता है. In fact, one cation के बदले one type of cation, one type of anion. So there will be one type of cation. जैसे यहाँ पे क्या है? Na plus है. So Na plus is your cation and यहाँ पे अगर second example में देखें तो bromine is your one type of anion. Now it can be complicated also. You might seem कि यार Al2SO4 thrice का क्या? So if you see, there are only two types of ions. One type of cation is aluminium and one type of anion is SO4. Okay. Now what happens is, basically whenever you dissolve a normal salt into water, it always gives you two things. One is a cation and another is anion. So the only rule or only, I'll say, thing that it needs to follow is when it is dissolved in the aqueous medium, उसमें positive और negative ions मिले. And salt के बारे में आपको पता है कि उसमें ions मिलते हैं. Now what happened was, when we were studying about salts, we came across a few very important salts. For example, we came across something that we know as concrete. Now, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, but इन टाइप के salts को हम लोग बोलते हैं compound salts. Now, I don't know whether you've heard about concrete's molecular formula, but the molecular formula is something like that. CaOAl2O3, tricalcium aluminate बोलते हैं. 3CaOAl2O3 dot H2O या dot 6H2O भी बोलते हैं इसको. Now this concrete, my dear friends, what happens is, इसमें जब कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिकली क्या हुआ, जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाने की वजह से एक नया टाइप का सॉल्ट बना, दैट इज ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. अब सीन ऐसा है ना, ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, इसमें दो टाइप के कटायन है और एक टाइप का अनायन है. That is, it has calcium ions also, aluminium ions also, and oxygen anions. So here, because there are different types of salts, or I'll say two salts combining, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? Compound salt. क्या बोलते हैं? Compound salt. वैसे ही जब KCN को ऐड किया हमने कॉपर साइनाइड में, तो इन दोनों का भी मिक्सचर से एक कंपाउंड सॉल्ट बना. ना इस कंपाउंड सॉल्ट में क्या होगा? ऑफ कोर्स पोटेशियम होगा, कॉपर होगा एंड साइनाइड होगा. इफ यू सी वन थिंग दैट इज कॉमन हियर, इट विल ऑलवेज हैव वन कॉमन आयन. ओके, तो जो दो सॉल्ट्स आप मिक्स कर रहे हो ना, उससे कॉमन आयन मिलेगा ना. द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि यही क्यों. इसका रीजन ये है कि कॉन्क्रीट, आप सोच रहे हो, टुडेज वर्ल्ड विदाउट कॉन्क्रीट is simply unimaginable. So when you are discovering new types of compound salts,
which have applications throughout the world. For example, even potash alum. Okay, आपने alum सुना रहेगा, which is used to clean water. Okay, potash alum हम लोग पानी में डालते हैं ताकि क्या हो जाए, सारा dirt settle down हो जाए. That potash alum is nothing but KAlSO4. Okay, KAl2SO4 thrice, I feel. So this is the formula for potash alum. I'm not very sure. मैं तुमको बताऊंगा इसका formula. So potash alum is also a compound salt. Similarly, when I talk about another type of salt that is the topic that we are going to study is, अब इसमें क्या हुआ, K2SO4 ऐड किया और एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड किया. अब इन दोनों को ऐड करके क्या हुआ, हमको मिला पोटाश एलम. अब इसमें भी अगर आप देखो एक आयन क्या है, कॉमन है. नाउ सेम थिंग वी ट्राइड विद अनदर कंपाउंड लाइक KCN एंड FeCN. नाउ ऑब्वियसली व्हाट वर वी एक्सपेक्टिंग हियर, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार मेरे को पोटेशियम भी मिले एंड मेरे को आयन भी मिले, राइट? But what happened was when it combined into a compound which was like K4FeCN6. Now the weird part about this compound was when you put it in water, जैसे ही इसको K4FeCN6 को पानी में डालो ना, तो पानी में इसके सिर्फ दो टाइप के आयंस बनते हैं, दैट इज K+ आयंस, वो भी 4, और एक FeCN6 4-. Now this is where the scientists did not understand कि भाई ये क्या सीन है, कि ये तो very similar to these type of salts, तो इसके जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए था, बट नहीं, इनका बिहेवियर अलग ही था. और क्योंकि ये सॉल्ट्स को एक कॉम्प्लेक्स आयन के वजह से इनको हम लोग बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. ओके, नाउ दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए ग्रामर टॉपिक, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, राइट? सो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है, इसमें हमेशा याद रखो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन अवेलेबल होता है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन. एंड दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन बैक इन द डे. हमको मालूम नहीं था इसके आगे क्या होने वाला, बट हम लोग को इतना पता था कि वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन होगा. ओके, सो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे कंपाउंड सॉल्ट्स कैसे टाइप के हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कैसे हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स. नाउ whenever we are studying types of anything, they are based on something, right? So now we are going to study the complex salts based on their ions. Okay, based on their ions, there are 4 types of complex salts. The first type of complex salt is called cationic complex. Now, what do you mean by cationic complex? Cationic complex basically means कि तुम्हारा जो complex ion है, that is going to be your cation. Okay, so if the cation is complex, cationic complex. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले कॉपर का. ओके, सो कॉपर अमोनियम या टेट्रामीन कॉपर सल्फेट. अब इसमें क्या है, CuNH3 जो है, ये पूरा का पूरा जो है कटायन है. ओके, एंड क्योंकि ये पूरा का पूरा कटायन है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, जैसे यहां पे क्या हुआ, ये कटायन कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा. सिमिलरली एक और एग्जांपल क्या होगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, तुम्हारा अनायन कॉम्प्लेक्स निकलेगा. सो दिस विल बी अनायन कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट अनायन कॉम्प्लेक्स, क्या होने वाला, तुम्हारा जो अनायन का साइड है, दैट इज नेगेटिव आयन जो है, दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स. जैसे हमने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल लिया था K4FeCN6 का. नाउ दिस इज एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स. नाउ if we take an example of potash alum, okay, KAlSO4 twice. Okay, very simple compound, लग रहा एकदम सिंपल है, बट इसको जब भी हम लोग डिसॉल्व करते हैं ना, तो मेरे को K+ आयन भी मिलता है, एल्यूमिनियम 3+ आयन भी मिलता है, और SO4 2- आयन भी मिलता है. मतलब जब पोटैश आलम को पानी में डालो तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा. लेकिन जब इसको पानी में डालो तो ये सिर्फ इधर से स्प्लिट होएगा और मेरे को सिंपल कटायन मिलेगा. कौन सा सिंपल कटायन मिलेगा, K+, एंड मेरे को एक कॉम्प्लेक्स अनायन मिलेगा. अब मेरे को बताओ व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स अनायन. अगर ये 4+ है तो ये कितना रहेगा, 4- रहेगा.
अगर ये 2 माइनस है तो ये टोटल क्या रहेगा, 2 प्लस रहेगा. सो दैट इज हाउ वी फाइंड द चार्जेस. अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया. थर्ड क्या रहेगा, थर्ड वाज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जहां पे हर आयन दैट इज द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव विल बी अ complex. Like for example, PT NH3 twice, sorry, NH3 4 PT Cl4. Okay, अब इस NH3 में 4 में क्या हो गया और ये Cl4 में क्या हो गया. It's basically this is also a complex ion, this is also a complex ion. So ये भी कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारा कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और तुम्हारा अनायन भी कॉम्प्लेक्स है. ओके, अब अगर हम लोग इस जगह पे देखें तो NH3 अमोनिया है, अमोनिया का चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा. इट इज स्टेबल कंपाउंड. सो इसका अगर चार्ज 0 है तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा. Cl का तो हमको पता है -1 है, तो ये टोटल यहां पे -4 है और ये 2x मिला के +4 होना चाहिए. सो दिस शुड बी योर चार्ज ऑफ +2 and this should be your charge of +2. We'll see a little further on this, but basically ये क्या रहेगा, अगर ये +2 है और ये 0 है तो ये क्या रहेगा, +2 रहेगा. एंड ये PtCl4 क्या रहेगा, -2 रहेगा. ओके, क्योंकि ये +2 है और ये -4 है. ओके, अब इसमें जो है, इसमें तुम्हारा पॉजिटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स है. इसका नाम अगर हम लोग देखें, इसका एक कॉमन नेम लिख सकते हैं हम लोग, टेट्रा अमोनिया कॉपर सल्फेट. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया गया कुछ समय बाद, कॉलिंग इट टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट. ओके, सिंपल. वैसे ये जो सेकंड एग्जांपल है उसका नाम क्या रहेगा तुम्हारा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ओके, सो नेक्स्ट वाले का कंपाउंड का नाम क्या डाला, पोटेशियम फेरो साइनाइड. राइट नाउ थर्ड वाले का नाम क्या रहेगा, टेट्रामीन प्लैटिनम क्लोरो प्लैटिनेट. क्यों काय को कैसे देखते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट वाला का बात करें तो लास्ट वाले का नाम है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ what is a neutral complex? A neutral complex is a compound which is neutral. Total charge क्या है, neutral है, but yet it is a complex. मतलब इसमें there will be no complex ions. The entire compound will be complex. The entire compound is complex. Like for example, we studied this when we were studying the first chapter, the basic general principles of isolation of elements. We studied about a compound of nickel and we called that compound nickel carbonyl. अब ये जो निकल कार्बोनिल है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स आयंस है, ना नेगेटिव चार्ज वाले आयंस है. ये टोटल जो कंपाउंड है उसका चार्ज क्या रहेगा, ऑफ कोर्स 0 रहेगा. It does not have a positive ion, it does not have a negative ion. Now if you see this compound विदाउट मी टेलिंग यू, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि यार ये निकल जो है वो पॉजिटिव आयन है और ये जो CO जो है शायद नेगेटिव आयन है. बट ऐसा नहीं है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. राइट, सो हाँ, डेफिनेटली देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज हियर, but things will get simpler. Why they will get simpler? Because now when we are studying this is like back in the day जब जस्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आए थे. ये नाम भी अजीब अजीब थे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस नाम के पीछे. तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल ये K4FeCN6 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं क्योंकि इस पे +2 चार्ज है. अब आयन पे +3 चार्ज भी तो हो सकता है, और अगर आयन पे +3 चार्ज होगा तो क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड पोटेशियम फेरिक साइनाइड की फेरोसाइनाइड. सो देयर वर क्वेश्चंस ऑन द नेमिंग डेफिनेटली. ओके, बट this was the basic thing that we understood कि there are 4 types of complexes: cationic, anionic, ionic and neutral complexes. Now when we studied further on these complexes we understood that there are these things which are attached to copper. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर हम लोग देखें तो कॉपर के साथ अमोनिया चिपका हुआ है, जैसे आयन के साथ साइनाइड चिपका हुआ है, जैसे प्लैटिनम के साथ NH3 और प्लैटिनम के साथ क्लोरीन, वैसे कार्बोनिल भी चिपका हुआ है. तो
तो जब हम लोग और इसमें डिटेल में पढ़े तो हम लोग को कुछ मालूम पड़ा, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज लिगेंड्स. ओके, लिगेंड्स, LIGANDS. नहीं, जो सोच रहा हो बिल्कुल मत प्रोनाउंस करना. लिगेंड्स है. लिगेंड्स को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. किसके साथ होता है लिगेंड्स? यूजुअली मेटल के साथ होता है. देख देख, अमोनिया कॉपर के साथ, साइनाइड आयन के साथ, अमोनिया अगेन प्लैटिनम, क्लोरीन कैसे प्लैटिनम, कार्बोनिल इज ऑल्सो विद निकल. सो मोस्टली दीज लिगेंड्स आर अटैच्ड टू व्हाट? मेटल्स. ओके, सो we've studied and we've understood a few things. Now what went further, let's understand that.